પ્રથમ અવતાર કલ્પોમાં મહાદેવજીનું સદ્યોજાત અવતાર છે. બ્રહ્માજી પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું ધ્યાન કરી રહ્યા હતા. નિર્ગુણ નિરાકાર પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું ધ્યાન કરી રહ્યા હતા અને એ સમયે એની સામે શિવજીનું પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું ધ્યાન કરતા હતા. એક શ્વેત વસ્ત્ર જેને ધારણ કરેલા, શ્વેત વર્ણવાળો, અને એ શ્વેત વર્ણવાળો એક બાળક એમની સામે શિખાધારી એક કુમાર ઉત્પન્ન થયો, જેને શિખા પણ હતી. શ્વેત વર્ણ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કરેલા હતા. એ સદ્યોજાત ભગવાનનો અવતાર છે. એ ભગવાન સદ્યોજાત તુરંત જ ઉત્પન્ન થઈ ગયા. સદ્યજાત ઉત્પન્ન થયા અને એમણે નંદ, સુનંદન, વિશ્વનંદ અને ઉપનંદન બ્રહ્માજીને 4 શિષ્યો પ્રદાન કર્યા છે. સૃષ્ટિની રચના કેવી રીતે કરવી બ્રહ્માજીને આશીર્વાદ પ્રદાન કર્યા છે ભગવાન શિવજીએ. એ સદ્યોજાત અવતાર છે. સદ્યોજાત પછી બીજો 20મો કલ્પ આવ્યો. 20મા કલ્પની અંદર પણ એ બ્રહ્માજીએ રક્ત વર્ણનું શરીર ધારણ કરી, બધા રક્ત વસ્ત્ર ધારણ કરીને મહાદેવજીની ઉપાસના કરી. અને એ સમયે એક પુત્ર પ્રગટ થયો, લાલ માળા સાથે, લાલ વસ્ત્ર સાથે, લાલ નેત્ર સાથે, લાલ આભૂષણો સાથે. એને વામદેવ કહેવાય. વામદેવ 20મા કલ્પનો અવતાર છે મહાદેવજીનું. 4 પુત્રો પ્રદાન કર્યા મહાદેવજી, વિરજા, વિવાહ, અશોક અને વિશ્વભાવન. કહ્યું કે આપ આને સંભાળજો. એમના પછી 21મો કલ્પ આવ્યો ત્યારે બ્રહ્માજીએ પીળા વસ્ત્ર ધારણ કર્યા છે. બ્રહ્મનું ધ્યાન કરતા કરતા એક કુમાર ઉત્પન્ન થયા અને બ્રહ્માજી એને તત્પુરુષ તરીકે ઓળખતા હતા. દિવ્ય કુમારો યોગ માર્ગમાં પ્રવર્તિત થયા. પછી શિવકલ્પ આવ્યો. ફરી એમાં બ્રહ્માજીએ ધ્યાન કર્યું ને કાળા રંગનો એક બાળક ઉત્પન્ન થયો, જેને જનોય અને મુકુટ ધારણ કરેલા હતા. એને અઘોર નામનો અવતાર કહે છે. પછી વિશ્વરૂપ કલ્પ આવ્યો છે. એમાં સરસ્વતીજી પણ પ્રગટ થયા છે ને ઈશાનમાંથી જટી, મુંડી, શિખંડી, અર્ધમુંડ આ બધા યોગપતિઓ થયા. જ્યારે જ્યારે જેમની જરૂરિયાત હોય ત્યારે મહાદેવજી એવી રીતે અવતાર ધારણ કરે છે. મહાદેવજીની તો અષ્ટમૂર્તિ છે. એક સલિલાત્મક રૂપ છે. જલના રૂપમાં મહાદેવજીની પ્રથમ મૂર્તિ છે, જેને ભવ કહેવામાં આવે. સલિલાત્મક રૂપ છે. મારી દ્રષ્ટિએ આ સાગર નથી, મહાદેવજીનો અવતાર છે. 3 મહાદેવ તો એકત્રિત થયા છે સાગરના રૂપમાં, સોમનાથ જ્યોતિના રૂપમાં અને શિવપુરાણના રૂપમાં. એમના પછી ભૈરવ અવતાર છે મહાદેવજીનું. ભૈરવ પૂર્ણ રૂપો હિ શંકરસ્ય પરાત્મનઃ મૂઢાસ્તં વેદ જાનન્તિ મોહિતા શિવમાયા. ભૈરવ પૂર્ણ રૂપો હિ, भैरव छे पूर्ण रूप से, भैरव ही पूर्ण रूप है महादेव जी का. शंकरस्य परमात्मनः, शंकर का पूर्ण रूप ही भैरव है. मूढ़ास्तम ते न जानन्ति, जो मूढ़ लोग होते हैं उसे जान नहीं पाते ये कौन है. मोहिता शिव माया, शिव की माया से मोहित है, कोई जान नहीं पाता. आज भी मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी आती है, तब काशी में मंगलवार के दिन पूरा पूजन होता है उनका. एक अपराधी को दंड देने के लिए, एक असत्य प्रस्थापित करके अपने आप को पूजा कराने वाले ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए महादेव जी की भ्रुकुटी से उत्पन्न हुए, भयंकर रूप में उत्पन्न हुए, इसलिए तो वो भैरव है. 5 मुख वाले ब्रह्मा जी ने भी बार बार असत्य का सहारा लेकर, एक केतकी के पुष्प का सहारा लेकर बताया कि मैं उनके मूल तक जा आया, यही मेरा साक्षी है. वो झूठ बोलने से ही जब महादेव जी प्रकट हुए तो उनकी भ्रुकुटी से, दोनों भ्रुवों के बीच में से एक भयंकर एक गण उत्पन्न हुआ. माने वो शिव का ही रूप था. ब्रह्मा को शिक्षा प्रदान करने के लिए वो पधार, इसलिए एक नाम कालराज भी है, एक नाम उनका रुद्र भी है. काल पुरुष भ्रुकुटी से उत्पन्न हुआ, इसलिए रुद्र भी उनका नाम है. भयंकर होने से वो भैरव भी है. इसीलिए जब भैरव जी प्रकट हुए तब
काल के रूप में प्रकट हुए, इसलिए काल भैरव भी माने जाते हैं। वो सभी के पाप भक्षण करने वाले हमारे काशी में तो वो कोतवाल है, वो रक्षक है। आज भी कोई विश्वनाथ के दर्शन करे या न करे, लेकिन कोई भैरव जी के दर्शन नहीं करेंगे तो काशी की फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए आज भी माना जाता है कि हम काशी में जाए और काशी में भैरव के दर्शन करें। वहां एक शिव जी ने वहां काशी में एक कन्या भी उत्पन्न की है, और वो कन्या दूसरी कोई नहीं, वो कन्या है काशी में प्रवेश करने से ही ब्रह्म हत्या चली जाती है। इसलिए कहा है या मुक्ति पुरी काशी सर्वाभ्योऽपि गरीयसी आधिपत्यं च तस्यास्ते कालराज सदैव हि। सर्वत्र ते प्रवेशोस्ति त्यक्त्वा वाराणसीं पुरीं। ब्रह्म हत्या को सभी जगह प्रवेश है, लेकिन वाराणसी में प्रवेश नहीं है। काशी जाने से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। हमें ऐसा होता है, कैसे दूर होती है? काशी में पंडित लोग इतने हैं, आपको गली गली में विद्वान लोग मिल जाएंगे। एक गली में आप निकलेंगे तो आपको विश्वनाथ दातार मिल जाएंगे, न्याय के बड़े विद्वान। अब राजाराम शुक्ल जी मिल जाएंगे, वेदांत के विद्वान। आप निकल जाएंगे कहीं पे भी, पूरी एक एक गली, ऐसी कोई गली नहीं है। आप सांगवेद विद्यालय में जाए, एक छोटी सी गली है लखन, लेकिन वहां एक विश्वेश्वर द्रविड़, राजेश्वर द्रविड़ जी ऐसे है। मानो शास्त्रों में आज भी उनकी, जब हम पढ़ने जाते तो वो 3 बजे कभी बुलाते, 3 बजे पढ़ने आना। माने वो 3 बजे पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए तत्पर हो तो कितने बजे वो जागृत होते थे, कितने बजे वो उठते होंगे, कब उनका जागना होता है। माने ऐसे दिव्य पुरुषों की नगरी है, इसलिए ब्रह्म हत्या वहां प्रवेश कर नहीं सकती। इसलिए तो वहां सब लोग भैरव जी को मनाने के लिए अनेक प्रकार की विधि विधान करते हैं। और आज भी मैं यहां हूं, लेकिन काशी मेरे साथ है काल भैरव के रूप में। आज भी भैरव जी को जो वहां पढ़ता है छात्र, वो भैरव जी के दर्शन नहीं करता या भैरव जी का कंठ धारण नहीं करता तो अवश्य ही बीमार हो जाता है, रुग्ण हो जाता है वो। इसलिए सभी भैरव जी का कंठ धारण करते हैं, इसलिए तो भैरव को मनाया जाता है। प्रतिपाल देव दमद मस्त काल भैरवा, प्रतिपाल देव प्रतिपाल देव दमद मस्त काल भैरवा, प्रतिपाल देव मस्त काल भैरवा। आयो शरण में तेरी तू कर निहार भैरवा, आयो शरण में तेरी तू कर निहार भैरवा, आयो शरण तेरी तू कर निहार भैरवा, आयो शरण तेरी तू कर निहार भैरवा। प्रतिपाल देव दमद मस्त काल भैरवा, प्रतिपाल देव दमद मस्त काल भैरवा। महादेव जी की आज्ञा से जब 5वां मस्तक काट दिया, आज भी खप्पर के रूप में भैरव के हाथ में वही ब्रह्मा जी का पंचमुख वाली, आज भी वो खप्पर धारण करते हैं। और भैरव ने उसी खप्पर में सबसे भिक्षा भी मांगी है। भैरव के सभी मंदिर वाराणसी में है, और वहां उज्जैन की तो बात ही मत करें, उज्जैन में भी प्रत्यक्ष भैरव है। मैं बताना नहीं चाहता कि वहां क्या पी जाते हैं, जैसे आप रखेंगे तो तुरंत ही वो पी लेंगे। आप देखते देखते ही देखेंगे तो आपका पात्र है वो खाली हो जाएगा। माने वही भैरव महादेव जी का एक भयंकर स्वरूप है। लोहा लंगर लंगोटा है वज्र का कछोटा, लंगर लंगोटा है वज्र का कछोटा, लोहा लंगर लंगोटा है वज्र का कछोटा, लंगर लंगोटा है वज्र का कछोटा। ये रंग भंग जोटा उन्मत विशाल भैरवा, ये जोटा उन्मत विशाल भैरवा, ये रंग भंग जोटा
भवताम उपस्थिति अग्रे एव सन्ति, भवताम दर्शनमपि सर्वेषां कृते भवेत्, तदर्थमेव ये संस्कृत रक्षकाः सन्ति, ये संस्कृत संवर्धकाः सन्ति। प्रतिपाल देव दमद मस्तकाल भैरवा, प्रतिपाल देव दमद मस्तकाल भैरवा, आयो शरण तिहारे तुम कर निहाल भैरवा, आयो शरण तिहारे तुम कर निहाल भैरवा। विश्वेश्वरेपि ये भक्ता नो भक्ता काल भैरवे न लभन्ते महादुखम काश्याम चैव विशेषतः। जो विश्वेश्वर के दर्शन करने के बाद वह विश्वेश्वर के दर्शन करता है लेकिन काल भैरव का दर्शन नहीं करता, ते लभन्ते महादुखम, वो दुख को प्राप्त करता है। काश्याम चैव विशेषतः, काशी में तो विशेष। आप यदि विश्वेश्वर नहीं जाएंगे तो चलेगा, लेकिन भैरव तो जाना ही है, क्योंकि वो भैरव साक्षात महादेव जी है। इसीलिए भैरव के दर्शन करें माने महादेव जी के दर्शन हो गए। और ऐसे भी आपको देखना है तो काशी में यदि आप भैरव जी भी ना पहुंच सके, विश्वेश्वर भी ना पहुंच सके, कोई किसी की श्मशान यात्रा होती है और सब राम नाम सत्य है बोलकर निकलते हैं, तब आप उसी पार्थिव शरीर को जिसने तारक मंत्र ग्रहण किया है काशी में, ऐसे शब को, ऐसे पार्थिव शरीर को नमन कर ले तो भी विश्वेश्वर के दर्शन हो जाते हैं। माने मृत्यु यत्र मंगलम, जहां मृत्यु मंगल होती है, जहां मरना मंगल होता है, सा काशी किन्न सेव्यते, वो काशी कैसे न सेवे। हमारा भी सौभाग्य रहा, हम 9 साल उसी भूमि में रहे, उसी भूमि में पढ़े। आज उसी भूमि की ही देन है कि जो आपके समक्ष हम बोल सकते हैं।